बाबकार मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम सामिईन व सामिआत नाज़रीन व नाज़िरात, respected elders, dear youngster, respected sisters and mothers in Islam, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alameen, wal aqibatu lil muttaqeen, wassalatu wassalamu ala ibadihi alladhina istafa, amma ba'd, fa'a'udhu billahi minash shaytanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. إن الدين عند الله الإسلام صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله الكرام وابنه الكريم وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. All praise is due to Almighty Allah Tabarak wa Ta'ala, the creator of the universe, the master of the day of judgment, our God, our Lord, our sustainer, our creator. Countless durood and salutation be upon crown of creation, purpose of creation, best of creation. Coolness to our eyes, purpose of our lives, revive of our heart, our Aqa, our Mawla, arwahuna fida Janabi Muhammadur Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wasallam, upon his household, upon his noble companions. Alhamdulillah, we are really fortunate, हम बहुत खुश नसीब हैं कि हम आज हमारे मुहतरम गुलाम अलाउद्दीन साहब के इस घर में महफिल हुसैन और महफिल अहले बैत में बैठे हैं. और I am really thankful and grateful, firstly Allah subhanahu wa ta'ala, and secondly this Alauddin family to invite me for this beautiful gathering, and of course our very own Al-Hajj Naushad Jawata Sahab who brought me here, and our very own brother Arshad. May Allah subhanahu wa ta'ala bless all them. Allah सबको बरकत अता फरमाए. आज का ये मौका आपसे गुफ्तगू करने का इनके जरिए मयस्सर आया. ये मुहर्रम और हराम का महीना है. आपने मजालिस को सुना होगा, अहले बैत के फजाइल को सुना होगा, सहाबा के फजाइल को सुना होगा, पंजतन पाक के फजाइल को सुना होगा, हसनैन करीमैन के फजाइल को सुना होगा, और करबला के उस पूरे वाक़े को सुना होगा जो मुहर्रम और हराम में आशूरा के दिन 10 मुहर्रम और हराम को वाक़े हुआ. You might heard from your ulama, from your aimma, scholars, the story of Karbala, the story of Battle of Karbala, the virtues of Ahlul Bayt, the virtues of Sahaba Ridwanullahi Ta'ala alayhim ajma'een. I will not discuss the virtues. I will try to convey a message why the Battle of Karbala took place, why Imam Hussain radiyallahu ta'ala stood up against Yazid, why Imam Hussain radiyallahu ta'ala went to Karbala. What message we can get from the life of Imam Hussain radiyallahu ta'ala, and what message we can take from the Karbala. हमें वो क्या पैगाम था जो इमाम हुसैन ने करबला के मैदान से दिया था. इमाम हुसैन करबला के मैदान में क्यों गए? What was the purpose? What was the goal of Imam Hussain radiyallahu ta'ala and to go Karbala? हमें क्या पैगाम मिला? हम खुश नसीब हैं that alhamdulillah we are Muslims. We are ummati of the beloved of Allah sallallahu ta'ala alayhi wasallam. We are really fortunate that we love Ahlul Bayt, we love Panjatan Pak, we love Sayyidina Aliul Murtaza, Fatimatul Zahra, Hasnain Kareem. We are really fortunate. We are really fortunate that Allah subhanahu wa ta'ala have chosen us as the ummati of his beloved Habib Janabi Muhammadur Rasulullah. हम खुश नसीब हैं कि अल्लाह ने अपने नबी का उम्मती हमें बनाया है. इससे बड़ी हमारे लिए सआदतमंदी क्या होगी कि हम उस नबी का कलमा पढ़ते हैं जो अल्लाह का हबीब है, नबियों का इमाम है, रसूलों का ताजदार है.
हम उस नबी का कलमा पढ़ते हैं, हम उस इस्लाम पर अमल करते हैं जो अल्लाह का मुकद्दस और पसंदीदा दीन है। जो मैंने आयत पढ़ी, इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। मज़ाहिब तो बहुत सारे दुनिया में, देयर आर मेनी मज़ाहिब, देयर आर मेनी रिलीजन इन दिस वर्ल्ड, बट द मोस्ट बिलवड रिलीजन which is actually religion in the sight of Allah subhanahu wa ta'ala, that is Islam। जो अल्लाह के नजदीक मजहब है वो मजहब इस्लाम है। और इसी मजहब, इसी शरीयत को नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हम तक पहुंचाया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी, आपका एक एक सेकंड मुझे चाहिए, then I can convey a message and you can connect as well। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम when he was 40 years old, अब Prophet सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब हमारे नबी की उम्र 40 साल थी, ये जो करबला में सब कुछ हुआ ये इस्लाम के खातिर हुआ। ये करबला में जो हुआ कुरान के खातिर हुआ, कुरान की हिफाजत के लिए, इस्लाम की हिफाजत के लिए, शरीयत की हिफाजत के लिए, नमाजों की हिफाजत के लिए, दीन की रूह की हिफाजत के लिए। Whatever had happened in the Karbala, just to protect deen of Allah subhanahu wa ta'ala, to protect the sharia of the Holy Prophet sallallahu ta'ala alayhi wasallam, to protect the book of Allah subhanahu wa ta'ala, Quran। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ta'ala alayhi wasallam ने मक्का की सरजमीन पर 40 साल की उम्र में ऐलान नबूवत किया। अब वहां से आप चले, मेरे आका ने दीन की इब्तिदा कहां से की और उस दीन को बचाने के लिए हुसैन ने कहां तक पहुंचे, हुसैन रज़ियल्लाहु ta'ala। When our Prophet sallallahu ta'ala wasallam was 40 years old, our Prophet sallallahu ta'ala wasallam, he announced his prophethood. Remember my words. He announced his prophethood. It doesn't mean that he became prophet at the age of 40. He was prophet before the age of the 40 as well. This is the Aqidah Ahlul Sunnat wal Jama'at. This is the Aqidah of Maslak Ala Hazrat. This is our Aqidah that our Prophet sallallahu alaihi wasallam, he announced his prophethood at the age of 40. जब आप 40 साल के थे, आपने नबुव्वत का ऐलान किया। नबी आप उससे पहले भी थे, नबी आप उससे पहले भी थे, क्योंकि मेरे आका ने खुद फरमाया, when हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु asked या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मता वजबत लकन नबुव्वह, या रसूलुल्लाह, when Allah subhanahu wa ta'ala bless you with the prophethood, Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam said, when Adam was between the sand and the water, I became prophet of Allah subhanahu wa ta'ala। जब आदम मिट्टी और पानी के दरमियान थे, मैं उस वक्त भी अल्लाह का नबी था। तो नबी वो पहले भी थे। हाँ, ऐलान 40 साल की उम्र में किया। कुछ लोग कहते हैं 40 साल में नबी बने, बनने में और अनाउंस करने में फर्क होता है। Someone appointed as a CEO of a company in the month of December, and the company announced that so and so is our CEO in the month of January and March. It means that that individual became a CEO in the month of December. वो दिसंबर में कंपनी का CEO बन गया था, लेकिन कंपनी ने अनाउंस मार्च में किया है। इसी तरह हमारे आका ने नबुव्वत का ऐलान 40 साल की उम्र में किया। नबी आप पहले भी थे, नबी उस वक्त भी थे जब अल्लाह ने कुछ नहीं बनाया था। क्योंकि मेरे इमाम ने कहा, सब कुछ नबी का सदका है। न जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मक्का तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, या रसूल अल्लाह बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में जबा तुम्हारे लिए, हम आए यहां तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। सब कुछ नबी का सदका है। तो मेरे आका उस वक्त भी नबी थे जब कोई नहीं था, लेकिन नबुव्वत का ऐलान 40 साल की। अकीदे की हिफाजत भी जरूरी है। अगर अकीदा खराब है तो सब कुछ खराब है। इफ अवर बिलीफ इज नॉट right, if our belief is not sound, everything is bad, everything is wrong. So aqidah should be perfect and sound. So our aqidah is that our Prophet sallallahu alaihi wasallam announced his prophethood at the age of 40, even though he was prophet before the age of 40. पहले भी नबी थे, ऐलान 40 साल की उम्र में किया। मेरे आका ने नबुव्वत का ऐलान 40 साल की उम्र में किया। मक्का की जमीन से तबलीग का ऐलान किया, लोगों को दीन की दावत दी, इस्लाम की दावत दी। इस दीन की दावत के लिए मेरे आका ने बहुत तकलीफ उठाई, परेशानियां उठाई, बदन पर पत्थर मारे गए, आंखों से मेरे आका के पैरों से खून बहा, जिस्म से खून बहा। जंग उहद में मेरे आका का दांत शहीद किया गया। मक्का की गलियों में आका को सताया गया, ताइफ के बाजारों में आका को परेशान किया गया। इस दीन के लिए, जिस दीन की हिफाजत हुसैन ने करबला में की, उस दीन के खातिर मेरे आका ने मक्का में तकलीफ बर्दाश्त की, ताइफ में तकलीफ बर्दाश्त की, शोबे अबी तालिब में तकलीफ बर्दाश्त की, मक्का के लोगों की गालियां खाई। वो दीन जिस दीन पर आज हम अमल करते हैं, वो दीन जिस दीन पर अमल करने के बाद वी फील प्राउड दैट वी आर मुस्लिम, वी फील प्राउड दैट वी आर द उम्मती ऑफ द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फॉर दिस दीन। अब प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम he suffered a lot, he faced a lot of difficulties in Makkah, in Taif, in Madinatul Munawwara,
मेरे आका ने बहुत तकलीफ बर्दाश्त की, और इतनी तकलीफ बर्दाश्त करने के बाद फिर अबू बकर ईमान लाए, उमर ईमान लाए, उस्मान ईमान लाए, अली ईमान लाए, बिलाल ईमान लाए, सलमान फारसी ईमान लाए, सहाबा की जमात तैयार हुई, और सहाबा की जमात तैयार हुई तो मेरे आका करीम ने फिर मक्का से मदीना हिजरत फरमाई इस दीन की हिफाजत के लिए। याद रखना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माइग्रेटेड फ्रॉम मक्का टू मदीनातुल मुनव्वरा जस्ट टू प्रोटेक्ट दीन ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। मेरे आका ने मक्का से मदीना हिजरत फरमाई। जब मेरे आका मदीना में पहुंचे, देन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एस्टैब्लिश अ मुस्लिम किंगडम। मदीना को सबसे पहले अल्लाह के नबी ने इस्लामी सल्तनत और इस्लामी हुकूमत बनाई। मदीना वॉज द वेरी फर्स्ट इस्लामिक किंगडम ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। मेरे आका ने सबसे पहले मदीना में इस्लामी सल्तनत का क़याम फरमाया, और उस सल्तनत का लीडर, the leader of that Islamic kingdom was our Prophet sallallahu ta'ala alayhi wasallam. That's why Nabi Kareem sallallahu ta'ala alayhi wasallam used to write the letters to the king of the entire world. मेरे आका ने जो है ना अबसीनिया के बादशाह को खत लिखा, रोम के बादशाह को खत लिखा, जो ईरान के बादशाह को खत लिखा, मुख्तलिफ दुनिया के बादशाहों को खत लिखा, और क्या दीन की दावत दी। और 10 साल की मुद्दत में मेरे आका ने दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में लोगों को दीन की दावत दी, सहाबा ने दीन की दावत दी। और जब मेरे आका की उम्र 63 ईयर्स ओल्ड थे, मेरे आका आपकी उम्र जब 63 ईयर्स हुई, जब आपकी उम्र का आखिरी हिस्सा था, मेरे आका 63 ईयर्स के बाद इंतकाल कर गए। ही डिपार्टेड फ्रॉम दिस वर्ल्ड। आई वुड लाइक टू मेंशन अकीदा हियर एज वेल। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रॉफिट डिपार्टेड फ्रॉम दिस वर्ल्ड। रिमेंबर, ही डिपार्टेड फ्रॉम दिस वर्ल्ड। ही इज नॉट डेड। Some people, they have this corrupt belief, ma'azallah, that Nabi is dead. Our Prophet is not dead. Our Prophet is alive. Because if our Prophet is dead, then entire universe is dead. Our Prophet is alive, that's why the entire universe is alive. We are alive, creation is alive, the universe is alive because the Prophet sallallahu alaihi wasallam. If our Prophet is dead, then everything is dead. So aqeedah of Ahl Sunnah wal Jama'at is, Ahl Sunnat का aqeedah यह है कि हमारे नबी जिंदा हैं, हमारे नबी जिंदा हैं। और मेरे इमाम ने कहा कि तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। वो नबी के दम करम से सब कुछ है ना। वो इकबाल ने कहा, ना हो ये न फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो, चमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी ना हो, ये न साकी हो तो फिर मैं भी ना हो, खुम भी ना हो, बज़्म तौहीद भी दुनिया में ना हो, तुम भी ना हो, खीमा अफलाक का इस्तादा इसी नाम से है, नब से हफ्ती तपिश आमादा इसी नाम से। एवरीथिंग इज बिकॉज द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सब कुछ अल्लाह के नबी के दम कदम से है। अगर वो ना रहे तो ये दुनिया कहाँ रहेगी। अल्लाह ने फरमाया ना, ये दुनिया नबी के कदमों की बरकत से है। तो हमारे आका ने इस दुनिया से डिपार्चर हुआ था, मेरे आका का इंतकाल हुआ था। कोई ऐसा नहीं कि माज़अल्लाह जो लोग कहते हैं कि नबी चले गए तो बात खत्म हो गई, नहीं, अवर नबी इज अलाइव। That's why when we go to Medina Sharif, Allah subhanahu wa ta'ala gives us opportunity to visit Medina Sharif. Say Ameen loudly. हमें मौका मिलता है तो जाते हैं, और गुम्बद खिजरा के सामने क्या पढ़ते हैं जो मेरे इमाम ने पढ़ा, मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम, शम्अ बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम, दूर व नज़दीक के सुनने वाले वो कान कान लाले करामत पे लाखों सलाम। आका मॉरिशस में पढ़ते थे तब भी आप पर सलाम, आज मदीना में खड़े होकर आप पर सलाम पढ़ लें। तो हमारे आका जिंदा है, दिस इज अकीदा। लेकिन जब आका का ज़ाहिरी विसाल हुआ तो इस्लामी सल्तनत तो कायम हो चुकी थी। द मुस्लिम किंगडम वाज एस्टैब्लिश्ड। So who will carry on the legacy and the mission of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam? Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam, he gave indication his own life. अल्लाह के नबी ने अपनी जिंदगी में इशारा दे दिया था कि मेरे बाद उम्मत जो है ना अबू बकर अलावा किसी और पर जमा नहीं होगी। तो नबी के विसाल के बाद सहाबा ने अबू बकर को खलीफा बना दिया। हजरत अबू बकर became a first खलीफा of Islam. Remember here, अकीदा ऑफ अहले सुन्नत वल जमाअत, हजरत अबू बकर इज ए फर्स्ट खलीफा। हजरत अबू बकर इज ए फर्स्ट खलीफा। Some people they say ma'azallah that Abu Bakr is not a first khalifa. Somebody like they gave a name Hazrat Ali al-Murtaza. We love Ali. We love Ali radiyallahu ta'ala an. Our jaan, our life is sacrificed for the honor of Ali al-Murtaza radiyallahu. हमारी इज्जत अली के नाम पर कुर्बान है। लेकिन अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा यह कि अबू बकर पहले खलीफा है। हम अली से प्यार करते हैं, अली की मोहब्बत अपने दिल में है, अली रदियल्लाहु ताला की ताज़ीम करते हैं। और जो अली से मोहब्बत ना करे वो मुसलमान ही नहीं है। अली की मोहब्बत इंसान को जिंदगी देती है, जिंदगी का सुकून, जिंदगी का करार अली की मोहब्बत से मिलता है। किसी ने कहा ना कि अली के इश्क को अदना न समझ मुनकिर, अली के जिक्र को अदना न समझ मुनकिर। अली का इश्क
चेहरा सवार देता है, अली का बुग़्ज़ चेहरा बिगाड़ देता है. If you have the love for Ali al-Murtaza, your face will be illuminated, and if you have the hatred for Ali, your face will be bad and black. तो अली रज़ी अल्लाह तआला से मोहब्बत करते, लेकिन खलीफा हजरत अबू बकर है. बात समझ में आ रही? समझ में आ रही ना बात? मैं आपको करबला तक लेकर जाना चाहता हूं. आपने वैसे वर्च्यू सुनोगे ना, मैं आपको आई वांट टू कनेक्ट यू व्हाई द बैटल ऑफ करबला टुक प्लेस. हजरत अबू बकर खलीफा बनते हैं. हजरत अबू बकर ने 2 साल खिलाफत की. ही वॉज खलीफा फॉर 2 years. द पीरियड ऑफ खिलाफत ऑफ हजरत अबू बकर वॉज 2 years. देन हजरत अबू बकर डिपार्टेड फ्रॉम दिस वर्ल्ड. Then Hazrat Umar radiallahu ta'ala, he became Khalifa of this ummah. Hazrat Umar is the second Khalifa of the Islam. And Hazrat Umar radiallahu ta'ala, he was Khalifa for 10 years. When Hazrat Umar radiallahu ta'ala departed from this world, then Hazrat Usmani Ghani radiallahu ta'ala became a Khalifa Muslim. This is the information and knowledge. Keep in your mind. Hazrat Abu Bakr was 2 years. Hazrat Umar radiallahu ta'ala was 10 years. When Hazrat Umar radiallahu ta'ala departed from this world, Hazrat Usmani Ghani Zunnurain, Damad Mustafa radiallahu ta'ala, he became Khalifa of this ummah. And his tenure, his period of Khilafat was 12 years. 12 saal aap Khalifa rahe. When Hazrat Usmani Ghani radiallahu ta'ala departed from this world, then Sayyidina Maula Ali, Mushkil Kusha, Khaybar Shikan, Damad Mustafa, Mushkil Kusha radiallahu ta'ala, and he became Khalifa of this ummah. And Hazrat Ali radiallahu ta'ala, he ruled over this ummah. The period of his khilafat was 5 years. आप 5 साल खलीफा रहे. और 5 साल के बाद हजरत अली रदियल्लाहु ताला ने इस दुनिया से इंतकाल फरमा गए. फिर हजरत अली के बाद सैयदना इमाम हसन रदियल्लाहु ताला, the eldest son of हजरत अली and हजरत फातिमा ज़हरा, he became खलीफा. ये 5वें खलीफा है. और इन 5 को खुलफाए राशिदीन कहा जाता है. खुलफाए राशिदीन इन 5 को कहा जाता है. अब इमाम हसन 6 महीने खिलाफत की. And after 6 months, he handed over the khilafat to Sayyidina Amir Muawiyah radiyallahu ta'ala. Who is Amir Muawiyah? Amir Muawiyah is a companion and the sahabi of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. Allah के नबी के sahabi का नाम Amir Muawiyah है. Amir Muawiyah खलीफा बने. हजरत अमीर मुआविया हजरत इमाम हसन के बाद खलीफा बने. हजरत अमीर मुआविया ने एक लंबे अरसे तक खिलाफत, निजामत, हुकूमत, वॉट एवर यू कॉल दैट, वो संभाली. और जब हजरत अमीर, याद रखना अमीर मुआविया सहाबी हैं. वी आर नॉट अलाउड टू से अ सिंगल बैड वर्ड सैयदना अबौट सैयदना अमीर मुआविया. अगर किसी ने अमीर मुआविया की इतनी सी भी तौहीन और डिसरिस्पेक्ट की ना, वो मुसलमान ही नहीं रहेगा. क्योंकि सहाबी की तौहीन, सहाबी के बारे में गलत जुमला कहना, ये गुमराही और बददीनी है. So we respect Sayyidina Amir Muawiyah because he was the writer of the Holy Quran. कातिब वही हैं वो, अल्लाह के नबी के सहाबी हैं. हजरत अमीर मुआविया के विसाल के बाद यजीद, he was a son of Sayyidina Amir Muawiyah radiyallahu ta'ala. वली के घर में शैतान पैदा होते हैं ना. वली के घर में शैतान पैदा होते हैं. बाप कभी कभी बड़ा नेक होता है लेकिन बेटा शराबी हो जाता है. बाप नेक होता है, बेटा बेनमाजी हो जाता है. बाप नेक होता है लेकिन बेटा हरामी हो जाता है. ऐसा भी होता है. तो हजरत अमीर मुआविया, he was a sahabi and यजीद was the son of सैयद अमीर मुआविया. लेकिन वो यजीद कौन था, उसके बारे में उलमा ने लिखा है कि वो मक्कार भी था, बदकार भी था, शराबी भी था, जानी भी था, फासिक भी था, फाजिर भी था. In easy was, he was not a deserving candidate to become a khalifa of this ummah. हजरत अमीर मुआविया का इंतकाल हुआ. यजीद ने खुद को अनाउंस कर दिया. He declared himself, he announced himself as the khalifa of this ummah, कि मैं इस उम्मत का इमाम हूं, इस उम्मत का खलीफा हूं. और उलमा ने लिखा है वो शख्स जानी भी था, शराब भी पीता था, नमाजें भी नहीं पढ़ता था, शरीयत के जो कानून है उनको पब्लिकली वायलेट करता था, उसको ब्रीच किया करता था. अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, ऐसा शख्स खलीफा नहीं बन, इसके आप मिसाल के जरिए समझे. आप अपनी मस्जिद के लिए एक इमाम की तलाश करें. क्योंकि एक शख्स को मैं जानता हूं, ही इज वेरी नॉलेजेबल पर्सन, ही हैज अथॉरिटी ओवर द नॉलेज, बट देयर इज वन प्रॉब्लम. व्हाट इज द प्रॉब्लम? ही इज अल्कोहलिक. Will you appoint that individual as your imam? आप उसको इमाम बनाएंगे? कहेंगे भाई नॉलेज का क्या करूं, जब इंसान के अंदर तकवा नहीं, जब इंसान के अंदर जो है ना परहेजगारी नहीं, शराबी को मैं अपना इमाम कैसे बना सकता हूं?
तो जब आप एक शराबी को एक मस्जिद का इमाम नहीं बना सकते, तो वो यजीद जो फासिक भी था, शराबी भी था, वो उम्मत का इमाम कैसे बन सकता है? तो जब यजीद ने अपनी खलीफा और मुसलमानों का हाकिम अमीर होने का ऐलान किया और ये ऐलान इमाम हुसैन तक पहुंचाया, एक शख्स को भेजा कि जाओ मदीना जाओ और मदीना के गवर्नर को मेरा पैगाम दो, सेंड माई मैसेज टू द गवर्नर ऑफ मदीना कि इमाम हुसैन से कहो कि मेरी बैअत कबूल कर ले, टेक माई बैअत, टेक माई एलिजेंस, कि मेरी बैअत कबूल कर ले, हुसैन से कहो। अब हुसैन कौन है? अब सुनो हुसैन कौन है। हुसैन वो है जिसके बारे में मेरे आका ने फरमाया, मेरे आका ने जो हुसैन के बारे में फरमाया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुसैन की शान बयान फरमाए। हुसैन क्या है कि अल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाबी अहलिल जन्ना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम said अल हसन वल हुसैन हुमा रयहानी मिन दुनिया, कि हुसैन वो है जो जन्नती, हसन और हुसैन वो हैं जो जन्नती जवानों के सरदार है, हुसैन वो हैं कि मेरी दुनिया के फूल हैं। और जिनके बारे में मेरे आका ने फरमाया अल्लाह की मोहब्बत का दावा करने वालों हुसैन से मोहब्बत करो, नबी के नवासे हैं, फातिमा के लाल है, अली के लाडले, अहले बैत से उनका ताल्लुक है। अब एक शराबी शख्स हुसैन से कहे कि मेरी बैअत करो, इसका मतलब कि मेरी बात मानो, यू फॉलो माई कमांड, वट एवर आई से यू हैव टू फॉलो दैट। इमाम हुसैन said no, I can't. Why? Because you are not a pious person, you are not a righteous person, you do not deserve this pious and righteous post. Imam Hussain refused. Imam Hussain denied to accept the khilafat of Yazid. Imam Hussain ने इनकार कर दिया, इनकार किया। Imam Hussain radiallahu ta'ala knew, because if Imam Hussain is refusing, so Yazid has power. यजीद के पास पावर थी, यजीद के पास आर्मी थी, यजीद के पास सब कुछ था, क्योंकि उसने अपनी खिलाफत का ऐलान तो कर दिया था ना, आर्मी उसके पास हो गई। तो जिसके पास पावर वो सब कुछ कर सकता है। उर्दू में कहते हैं ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो जिसके पास पावर, इफ यू हैव पावर, इफ यू हैव पुलिस, इफ यू हैव आर्मी, यू कैन डू एनीथिंग। सो हजरत इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला को पता था कि यजीद के पास ताकत है, वो जरूर मुझ पर प्रेशर डालेगा, फोर्स करेगा कि मैं उसकी जो है ना बैअत को कबूल करूं और उसको खलीफा तस्लीम कर लूं। तो इन तमाम चीजों के मद्देनजर इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु ने इरादा किया कि मदीना में अगर ये कुछ करेगा तो मुझे पसंद नहीं कि वो जमीन जो मेरे नाना को पसंद है, जो मुस्तफा करीम को पसंद है, उस मदीना की सरजमीन पर किसी भी तरह का कोई कियोस हो, कोई नॉइज हो। That's why Imam Hussain decided to migrate from Medina to Makkah al-Mukarramah. If you remember, I said, remember one thing. Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam migrated from Makkah to Medina to protect deen of Allah, to protect the Quran. And now the Nawasat, the grandson of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, is migrating from Medina to Makkah to protect deen of Allah subhanahu wa ta'ala and the Sharia of the beloved sallallahu ta'ala alaihi wasallam. इमाम हुसैन ने मदीना से मक्का हिजरत फरमाई। जब मक्का पहुंचे और जब कूफा के लोगों को पता चला, जो कि कूफा हजरत अली का भी दारुल खिलाफत है, the capital city of Ali al-Murtaza was Kufa, and there were some people who love Ali al-Murtaza radiyallahu ta'ala. तो जब इमाम हुसैन मक्का पहुंचे, कूफा के लोगों को पता चला, तो कूफा के लोगों ने लेटर्स लिखे कि अगर आप मदीना में नहीं है, मक्का चले गए, तो इससे बेहतर है कि आप कूफा आ जाएं। We wanted to be here in Kufa. So the people of Kufa, they wrote letters to Imam Hussain. They sent letter to Sayyidina Imam Hussain, 1 letter, 2, 5, 10, 20, 30, 40, 50, 100, 120, one of the narration. 150 letter Imam Hussain ko likhe. The time is very short, so I will conclude within my time. So finally Imam Hussain radiallahu ta'ala decided to go to Kufa. But some of the Sahaba, Hazrat Abdullah ibn Zubair and other Sahaba, they advised him to not go Kufa because of people of Kufa are not trustworthy. Kufa के लोगों का भरोसा नहीं किया जा सकता, आप ना जाएं। इमाम हुसैन ने कहा लोग मुझे बुला रहे हैं, मेरे लिए तो अब जाना जरूरी हो गया, वरना यजीद के जुल्म सितम से वो कैसे बचेंगे? अगर वो मुझे बुलाना चाहते हैं इसलिए कि यजीद के जुल्म सितम से बच जाए, फिर तो मेरी मजहबी जिम्मेदारी है कि मैं जाकर के उनको बचाऊं। तो इमाम हुसैन ने कहा मुझे जाना चाहिए, लेकिन सहाबा ने कहा मत जाओ। तो ये हुआ कि हजरत मुस्लिम बिन अकील को भेजा गया। हजरत मुस्लिम बिन अकील ने खत लिखा कि आप भी आ जाए, लेकिन उधर खत कूफा से निकला, उधर मुस्लिम बिन अकील को भी शहीद कर दिया गया। फाइनली इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला फिर जब खत मिला तो वो भी मक्का से कूफा की तरफ जाने लगे। When Imam Hussain radiallahu ta'ala was going to Kufa, on the way, the army of Yazid stopped him and his companions at Karbala.
जो करबला की जगह जो मैदान है वहां पर रोक दिया गया और फिर इमाम हुसैन से यही डिमांड की गई, यही फोर्स किया गया, यजीद की बैअत कबूल करो, यजीद की बैअत कबूल करो। लेकिन इमाम हुसैन ने कहा अगर बैअत कबूल करना होती तो मदीना छोड़ता, अगर बैअत कबूल करना होती तो मक्का छोड़ता, अगर यजीद को मुझे हाकिम तस्लीम करना होता तो अपने नाना का शहर क्यों छोड़ता, मैं बैअत तो कबूल नहीं कर सकता हूं। तो कहा फिर ठीक है, जंग करने के लिए तैयार हो जाओ। इमाम हुसैन तो जंग करने नहीं गए थे, इमाम हुसैन तो अपनी फैमिली के साथ गए थे। रिवायात में आता है कि 82 पीपल वे विद इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु, सिर्फ 82 लोग थे इमाम हुसैन के साथ। 9 मुहर्रम का दिन आता है, इमाम हुसैन के टेंट्स पर हमला किया जाता है। इमाम हुसैन ने हजरत अब्बास को भेजा, जाओ पता करो व्हाई दे आर अटैकिंग विदाउट इन्फॉर्मिंग अस। हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला he went to the army of Yazid and asked, why you are attacking without informing us? They said, no, this is the time to decide. You want to take the bay'at of Yazid or you want to fight? ये वक्त आ गया है, do and die, फैसला करो क्या करना है। यजीद को मानोगे खलीफा या फिर लड़ना चाहते हो तो लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। हजरत अब्बास ने इमाम हुसैन को बताया तो मेरे हुसैन ने क्या इरशाद फरमाया, हजरत इमाम हुसैन ने कहा, ए अब्बास जाओ और उनसे कहो हमें एक रात का वक्त दे दे, गिव अस ओनली वन नाइट, गिव अस ओनली वन नाइट। इमाम हुसैन ने कहा एक रात का वक्त दे दे। Why Imam Hussain radiallahu ta'ala asked for one night? Think about it. Just to sleep nicely and peacefully. Why Imam Hussain radiallahu ta'ala asked for a night? Just to enjoy a nice and delicious meal? Why Imam Hussain radiallahu ta'ala asked one night? Spend good time with family? Why Imam Hussain asked for a night? ये मेरी जिंदगी की आखिरी रात होगी, कहा एक रात का मुझे वक्त दे दो। इमाम हुसैन ने वो आखिरी रात क्यों मांगी थी? मेरे हुसैन फरमाते हैं मुझे एक रात का वक्त इसलिए दे दो कि मैं एक रात अल्लाह की बारगाह में सजदे में रख के गुजार सकूं। अल्लाह अकबर। मुझे एक रात इसलिए दे दो कि मैं अल्लाह की बारगाह में खड़े होकर इबादत कर सकूं। मुझे एक रात इसलिए दे दो कि मैं अल्लाह के कुरान की तिलावत कर सकूं। गिव मी ओनली वन नाइट so I can worship Allah subhanahu wa ta'ala, I can perform sujood in the court of Allah subhanahu wa ta'ala, I can recite the Holy Quran, I can please my creator, my Lord, my sustainer Allah subhanahu wa ta'ala. Give me one night. एक रात दे तो ताकि अल्लाह की बारगाह में मैं इबादत और बंदगी में गुजार सकूं। ये हुसैन थे, हम हुसैन के होने का, हुसैनी होने का दावा करते हैं। हमारी रातें कैसी गुजरती? Ask yourself. I do not say anything, I do not blame, just ask yourself. We claim that we are Husaini. If we do spend our night in worshipping and praying, reciting the Holy Quran, if we do, alhamdulillah. If we do not do, then ask yourself, are we real Husaini? क्या हम सच्चे हुसैनी हैं? इमाम हुसैन ने अपनी जिंदगी की आखिरी रात इसलिए मांगी थी इबादत कर सके। और जब सुबह का सवेरा तुलू हुआ, जब 10 मुहर्रम का दिन आया, तो हुसैन ने फिर सब कुछ कुर्बान कर दिया। He sacrificed everything. He sacrificed his son, he sacrificed his nephew, he sacrificed his well-wisher, he sacrificed his friend, he sacrificed himself just to protect deen of Allah subhanahu wa ta'ala. वो दीन जो दीन आज हमको पसंद है, वो कुरान जिसको हम अपने घरों में बरकत के लिए पढ़ते हैं, वो नमाजें कि जिसके जरिए हम अल्लाह की बारगाह में दुआएं करते हैं, वो सजदे कि जिसकी खातिर हम अपना घर छोड़ते हैं, इन तमाम चीजों की हिफाजत के लिए करबला के मैदान में इमाम हुसैन ने खुद को कुर्बान कर दिया। और कुर्बान करने के बाद खुद को लुटा दिया, लेकिन दीन को बचा लिया, इस्लाम को बचा लिया, कुरान को बचा लिया। तो इमाम हुसैन ने बचा करके ये बताया कि लोगों, मैं जान दे रहा हूं इस कुरान के लिए, तुम इस कुरान को छोड़ ना देना। मैं जान दे रहा हूं इस दीन के लिए, इस दीन को छोड़ ना देना। मैं जान दे रहा हूं अपने नाना की शरीयत के लिए, मेरे नाना की शरीयत को भुला ना देना। बी फर्म ऑन योर रिलीजन, बी फर्म ऑन योर बिलीफ, बी फर्म ऑन योर अकीदा, रिसाइट द कुरान, प्रे, नमाज, वर्शिप अल्लाह सुब्हानहू व तआला। दिस इज द रियल हुसैनियत, दिस इज द रियल लव फॉर सय्यदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला। जो दीन मेरे आका ने बनाया था, जिस दीन की इशाअत मेरे आका ने की थी, जिस दीन की हिफाजत के लिए आका ने ताइफ के बाजारों में परेशानियां उठाई थी, जिस दीन की हिफाजत के लिए आका ने मक्का की गलियों में तकालीफ उठाई, उसी दीन की हिफाजत के लिए उसी नबी के नवासे ने करबला के मैदान में अपने सर को कटा दिया और बता दिया कि हुसैन सर तो कटा सकता है, लेकिन दीन का सौदा करने के लिए किसी यजीद के सामने झुका नहीं सकता है। तो हम हुसैनी हैं, नबी का कलमा पढ़ने वाले हैं। ये हमारी जिम्मेदारी कि हम हुसैन की उस तालीम पर अमल करें। अब वो 1400 साल का जमाना गुजर गया, जमाने ने फितने देखे, जमाने ने फसाद देखे, लोगों ने आए, फितने भी फैलाए। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, स्पेशली फॉर द मॉरिशस, मॉरिशस सच अ ब्यूटीफुल आइलैंड, ब्यूटीफुल पीपल, ब्यूटीफुल एटमॉस्फेयर, एवरीथिंग इज ब्यूटीफुल।
But at the same time, some people, they try to come here and they try to, misguide the people. They try to corrupt their belief as well. लोगों का अकीदा खराब करना चाहते हैं, लोगों का अकीदा खराब करना चाहते हैं कुछ लोग। मैं आपकी एक बात हमेशा, मैं इस मुल्क के लिए हमेशा कहता हूं, आप कोई भी शख्स आए, कितना भी डायनामिक स्पीकर क्यों ना हो, कितना भी ब्यूटीफुल ऑरेटर क्यों ना हो, कितनी भी अच्छी उसकी रीजंस क्यों ना हो आपके अकीदे के हवाले से, मैं कहता हूं किसी की बात ना सुनना, उसकी बात सुनना जिसने इस मुल्क में आपके ईमान और अकीदे की हिफाजत की है। उन 3 शख्सियात की बात सुनना जिन्होंने खास कर इस मुल्क में लोगों की अकीदे की हिफाजत की है। वो हजरत अल्लामा अब्दुल अलीम सिद्दीकी मेरठी खलीफे आला हजरत है, वो अल्लामा शाह अहमद नूरानी है, और वो खलीफे मुफ्ती आजम अल्लामा इब्राहिम खुशतर रहमतुल्लाह ताला। आपने इनके दामन को मजबूती से पकड़ा है ना, तो आप मसलक आला हजरत पर भी कायम रहेंगे, आप दीने शरीयत मुस्तफ़ा पर भी कायम रहेंगे, और आप अहले बैत का लब भी अपने दिलों में रखेंगे, और आप मसलक आला हजरत पर कायम रहेंगे। क्योंकि जो मसलक आला हजरत वाला होगा वो हुसैन की मोहब्बत भी रखता है, अहले बैत की मोहब्बत भी रखता है, पंजतन पाक की मोहब्बत भी रखता है, सहाबा की मोहब्बत भी रखता है, और नबी की मोहब्बत भी रखता है। क्योंकि जब तक नबी की मोहब्बत दिल में ना आए सब कुछ बेकार है। There's nothing without the love of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. Our life is nothing. Our life is nothing without the love of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. मेरे इमाम ने कहा ना कि लहद में इश्क़ रुख़े शह का दाग लेके चले, अधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, ए इश्क़ तेरे सदक़े जलने से छुटे सस्ते, वो आग लगाई है जो आग बुझा देगी। मेरे इमाम ने फरमाया उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गए। अगर ये आपके अंदर जज्बात होंगे तो आपको कोई nobody could misguide you, आपको कोई गुमराह और बद्दी नहीं कर सकता। इमाम के दामन को मजबूती से थामो, इमाम का दामन थाम लिया तो गौसे आजम तक भी पहुंच जाओगे, गरीब नवाज तक भी पहुंचोगे, अहले बैत तक भी पहुंचोगे। क्योंकि नबी की मोहब्बत में सब कुछ है। इकबाल लिखा ना कि नबी की मोहब्बत ही में सब कुछ है। इकबाल लिखा ना मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, अगर इसमें हो कुछ खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। अगर मोहब्बत रसूल में कमी आ जाए तो सब कुछ खराब हो जाएगा। तो करबला के पैगाम पर अमल करो, नबी की मोहब्बत दिल में रखो, कुरान की तिलावत करो, नमाज पढ़ो, रीड द कुरान, प्रे योर नमाज, वर्शिप अल्लाह सुब्हानहू व तआला, रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, रिस्पेक्ट योर मदर, रिस्पेक्ट योर फादर, रिस्पेक्ट योर सिस्टर, रिस्पेक्ट योर सिबलिंग, रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, be firm on the Quran, be firm on the religion. Inshallah your life will be successful, your life hereafter will be successful. ये अगर ये काम हो गया तो इंशाल्लाह सब काम बन जाएगा। अल्लाह की बारगाह में दुआ है अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारी इस महफिल को अपनी बारगाह में शर्फ कबूलियत अता फरमाए। जो मैंने बयान किया अल्लाह हम सबको उसको समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।